وہ ایک بندہ 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہے، شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرمائے، سارے آمین کہیں، اللہ ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا حکم ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ينذرون۔ تم میں سے ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، تم میں سے ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو کیا کرے، جو دین کا علم حاصل کرے، جو قرآن کا فہم حاصل کرے، جو قرآن کو سمجھ لے، اور جب قرآن کو سمجھ لے تو وہ قرآن کو سمجھ کر کے پھر کیا کرے، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹے، پھر اپنی بستی کی طرف جائے، پھر اپنے شہر کی طرف جائے، وہاں جا کر کے اپنی قوم کو ڈرائے، اپنی قوم کو ڈرائے، کس سے ڈرائے؟ اللہ سے ڈرائے، اللہ سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کی جنتوں کی خوشخبری سنائے۔ تم میں سے ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر میں یہ پوچھنا چاہوں، جاننا چاہوں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیے، آج میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کسی انگلش میڈیم سکول کے اندر پڑھے، میرے بیٹے کو انگلش بولنی آنی چاہیے، وہ انگلش کے چند کچھ جملے بولے، میں سن کر کے خوش ہو جاتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ انگلش کے جملے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ قیامت والے دن یہی بیٹا ہوگا، یہی بیٹی ہوگی، یہی گھر والے ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، وہی بیٹا یہ نہیں کہے گا اللہ میرے والد نے مجھے انگریزی نہیں سکھائی تھی، انگریزی بولنا نہیں سکھائی تھی۔ لیکن ہاں یاد رکھیے، یہ بیٹا کھڑا ہو کر کے یہ مقدمہ ضرور دائر کرے گا، یہ بیٹی کھڑی ہو کر کے یہ مقدمہ ضرور دائر کرے گی، اے اللہ میرے والدین نے مجھے قرآن نہیں سکھایا تھا، میرے والدین نے مجھے قرآن نہیں سکھایا تھا، میرے والدین نے نہ قرآن پڑھنا سکھایا، نہ قرآن سمجھنا سکھایا، نہ قرآن کے اندر متصل ہونا سکھایا۔ ارے اللہ کے بندو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج برائیوں کا طوفان ہے، مغربی تہذیب کا طوفان ہے، یہ برائیوں کا طوفان آپ کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں انکار کروں تو کرتا رہوں، یہ برائیوں کا طوفان میرے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ برائیوں کا طوفان اس نے میرے بیوی بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، میری لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میرے دوستوں، یہ برائیوں کا طوفان گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مقابلہ کیسے کریں گے؟ مقابلہ کیسے کریں گے؟ اپنی اولاد کو ڈانٹتے رہیں گے، اپنی اولاد سے لڑتے رہیں گے؟ نہیں، ڈانٹنا اور لڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ڈانٹنا اور لڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، پابندی لگانا بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں، آپ برائیوں کے طوفان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر وہ برائیوں کے طوفان کا مرکز نہ بنے، بلکہ آپ کا گھر وہاں سے نیکی کی خوشبو آئے، آپ کے گھر کے اندر سے قرآن کے نور کی کرنیں پھوٹیں۔ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے، اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے، انہیں قرآن کا فہم دیجئے، انہیں قرآن کا فہم دیجئے، انہیں قرآن کا علم دیجئے، ان کے ذہنوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کیجئے، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کیجئے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ برائیوں سے بچ سکیں گے، وہ برائیوں سے بچ سکیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ اولاد جو اللہ نے بطور نعمت عطا کی ہے دنیا سے چلے جائیں، پیچھے ان کا ایمان باقی نہ رہے، پیچھے ان کا عقیدہ باقی نہ رہے، پیچھے یہ اللہ کے رسول کو بھول جائیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس کے مجرم ہم اللہ کی عدالت میں ٹھہریں گے۔ اس لیے میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے بھائیوں، 5 دن کی یہاں قرآن کلاس ہے، یہاں ایک وہ شرکاء ہیں جو پورے قصور سے یہاں آ رہے ہیں، لیکن اس محلے کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس 5 روزہ کلاس کے اندر وقت نکال کر کے شرکت کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، جو وقت نکالیں گے، جو یہاں پہنچیں گے، جو قرآن کلاس کے اندر شریک ہوں گے۔
जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए, आपको तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ और आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम आप दाई आज़म हैं, दाई आज़म, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। मेरे भाइयों, आप कोई नबी तो आने वाला नहीं है, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जब जब कोई नबी नहीं आना तो ये दावत का काम, ये दावत अल्लाह का काम किसने करना है? ये सिर्फ प्रोफेसर हाफिज सईद धामरा साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है, कि वो ये तहैया करे कि वो दावत का काम करेगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह, दावत का काम करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे में हम लोगों को अपने जत्थों की तरफ बुलाते हैं, अपने धड़ों की तरफ बुलाते हैं, झूठी शख्सियतों के गिर्द इकट्ठा करते हैं, दुनियावी मफादात के लिए इकट्ठा करते हैं। अरे मुसलमानों, हमारे जिम्मे तो ये था अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते, लेकिन आज मेरे और आपके पास इसके लिए वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। वादा करो दावत अल्लाह के लिए वक्त देंगे इंशाअल्लाह, वक्त देंगे इंशाअल्लाह, ऊंची कहे वक्त देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देंगे, अल्लाह के रास्ते के लिए वक्त देंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम, कभी आपने उनकी सीरत पढ़ी है? मेरे भाइयों, आप मक्का में मौजूद हैं, मक्का की बस्ती में 15 से ज़ायद जगह ऐसी हैं जहां मेले लगा करते थे, जहां बाजार लगा करते थे, जहां वहां जगह जगह लोग इकट्ठे होते थे, मंडियां लगा करती थी। इन मेलों में, इन बाजारों में वहां खराफात भी थी, वहां इंसान बिकते थे, वहां दुनिया के सारे गुनाह वहां नजर आते थे। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दाई आज़म है, सीरत की किताबों में आता है, इन 15 से 15 मकामात के ऊपर आप खुद तशरीफ ले गए, लोगों को पुकारा, लोगों अल्लाह की तरफ पलट आओ, लोगों अल्लाह की तरफ पलट आओ। हमारी हालत ये है कि हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, हमने कभी अपनी गली वालों को दावत नहीं दी है, हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, हमने अपनी बस्ती वालों को कभी नहीं कहा, हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, हमने कभी मोहल्ले वालों को नहीं कहा। अगर कहीं कभी कहेंगे तो किसी फिरका वारियत की लड़ाई में पड़ जाएंगे, अगर कोई बात करेंगे तो किसी सियासी लड़ाई और झगड़े का हिस्सा बन जाएंगे। आओ मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज तहैया करें कि इंशाअल्लाह हम दावत अल्लाह का काम करेंगे, इंशाअल्लाह दावत अल्लाह का काम करेंगे। और मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम दावत अल्लाह का काम कर रहे हैं। मक्का वालों पे जब बात मुकम्मल हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। आपने पढ़ा है, आप खुद मुतालिया करने वाले लोग हैं, ताइफ तशरीफ ले गए कि मक्का वाले तो नहीं सुन रहे, मैं ताइफ जाता हूँ, ताइफ वालों को जाकर के अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। आप ताइफ तशरीफ ले गए, लेकिन ताइफ वालों ने भी आपके साथ जो सलूक किया, जो रवैया रखा, वहां से वापस पलटे। आप लहूलुहान हैं, पत्थर बरस रहे हैं, लेकिन जब वापस पलट रहे थे तो मेरे भाइयों एक जगह पे खड़े हुए आपने, हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दावे तो करते हैं, मोहब्बत के दावे तो करते हैं, रबीउल अव्वल का महीना आए तो झंडियां भी बड़ी लगती हैं, हम जुलूस भी निकालते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि उनकी सीरत पे अमल कौन करेगा, उनकी दावत के रास्ते को अख्तियार कौन करेगा? अरे अल्लाह के बंदो, आप वहां से वापस पलटे, एक दरख्त के साए में बैठे और उस मौके पे आपने एक दुआ की, अपने रब से दुआ, ऐसी दुआ कि कभी आप उसको पढ़ें, कभी आप अरबी समझ करके उसको पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ो फक़ुबती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नासी या अरहमर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मैं अपने ज़ो फक़ुबती, अपनी ताकत की कमी, या अल्लाह अपनी बेबसी, या अल्लाह लोगों का मुझे इतना हल्का समझना, ये सब का शिकवा आपसे करता हूँ, अल्लाह आपसे इसका शिकवा करता हूँ। या रहमान रहीम,
मैं अपना दर्द आपके सामने बयान करता हूँ। और फिर फरमाया अंत रब्बुल मुस्तदअफीन, ऐ मेरे रब आप तो कमजोरों के रब भी हैं, व अंत रब्बी, और आप मेरे भी रब हैं, आप मेरे भी रब हैं। इला मन तकिलुनी, आपने मुझे किन के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह आपने मुझे किन के सुपुर्द कर दिया है। इला बैदिन, ऐसे लोगों के हवाले कर दिया है, यतजहमुनी, जो जिन्होंने मुझे दुत्कार दिया है, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया है। और या अल्लाह और इला अदुबिन, ऐसे दुश्मन के हवाले कर दिया है, मलकत अमरी, जो मेरे मामले के मालिक बन गए हैं। अगला जुमला फरमाया लेकिन ऐ मेरे रब, अगर इस सब कुछ के नतीजे में अगर तू राजी है, अगर तू राजी है, अगर तू राजी है, तो फिर मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। आइए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आज के इस खुतबा जुमा में हालात हाजरा पे कोई बात नहीं करना चाहता, हालात हाजरा पे कोई बात नहीं करना चाहता। इससे बड़े हालात हाजरा और कौन से हैं कि उम्मत की तादाद में कोई कमी नहीं है, उम्मत के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, उम्मत के पास अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं है। इस उम्मत के पास करोड़ों नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन एक ही कमी है, इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान को छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आइए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, दावत अल्लाह का तरीका ये है कि सबसे पहले अपने घर के अंदर वो जो मेरे बीवी बच्चे हैं, वो जो मेरा खानदान है, वो जिसका सरबराह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बनाया है, वो जिसके बारे में क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा, सबसे पहले अपने घर के अंदर इस दावत के पैगाम को पहुंचाइए, इस कुरान के पैगाम को पहुंचाइए। सबसे पहले अपना घर, सबसे पहले अपना घर, ओ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचा लीजिए, जहन्नम की आग से बचा लीजिए। अपने घर को कुरान के नूर से मुनव्वर कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने घर को कुरान के नूर से मुनव्वर कीजिए। दूसरा मरहला, अल्लाह के रसूल की सीरत की रोशनी में आपने सबसे पहले घर में जब आपने दावत दी तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो कैसे उठी? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं है, मेरे माल और दौलत आपके लिए है, मेरी दौलत आपके मिशन के लिए है, मेरा सब कुछ आपके लिए है। तो मैं अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं, आप महरूमों के सरों पे हाथ रखते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमान की इज्जत करते हैं, आप लोगों के हक के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सईदा खदीजा ने तसल्ली दी, हौसला दिया। जरा मुझे बताइए ना, कभी हमें भी घर के अंदर से दीन के मामले में हौसला मिला है? जिसको हौसला मिला हो वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अल्लाह हमारे घरों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा। और फिर अगला मरहला, आपने अपने खानदान को इकट्ठा किया। कहाँ इकट्ठा किया? खाने की दावत पे बुलाया, अपने घर में बुलाया, सारे अजीजों अकारब आ गए, खाने की दावत पे आए। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आज हम खाना खिलाएं तो वो भी दिखलावे के लिए, वो भी नाक रखने के लिए, वो भी अपना नाक ऊंचा करने के लिए। कभी आपने खाना इस लिहाज से खिलाया हो कि आओ मेरे दस्तरखान के ऊपर लोगों, आओ मेरे दस्तरखान के ऊपर, मैं तुम्हें अल्लाह के दीन की दावत देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के दीन की दावत देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने दस्तरखान के ऊपर अपने खानदान को इकट्ठा फरमाया और फिर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। और फिर तीसरा मरहला, आपने पूरे मक्का को कोहे सफा की पहाड़ी पे इकट्ठा किया। कहा मक्का के लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू,
میرے بھائیوں وہاں سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، اللہ نے وہاں قوت عطا فرما دی، اور اگلا مرحلہ فرمایا اللہ نے قوت دے دی ہے، اب میں خطوط لکھ رہا ہوں، یہ خط میرا یہ کیسرے روم کو بھی پہنچے گا، یہ کسرا ایران کو بھی لے کر کے جاؤ، یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعوت کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گلی اور محلے کے اندر اس دین کا دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔